हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। बिफोर मूविंग अहेड विद दिस वीडियो, आई थिंक all of us must take a moment to express our sadness for the lives that have been lost and for the survivors whose lives have been ruined after the Pahalgam terror attack. Very importantly, as students preparing for the civil services examination, it brings to you a perspective, a moment, a time to reflect, to really understand what you're preparing for. Right? This exam and the office that you will hold if you happen to clear it is bigger than you, it is bigger than us. It is oriented towards the welfare of the nation. It is oriented towards serving your citizens, to ensuring more secure lives to them, to ensuring better governance for them, to ensuring better administration for them, so as to ensure that such incidents do not happen in the future. Right? With that said, we really hope that there is justice served to the survivors, to the victims, and in fact to all the fellow countrymen who grieve for them. Right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपीएससी का 2024 का जो है रिजल्ट आ गया है एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स राइट हु वाज इनरोल्ड इन PSIR टेस्ट सीरीज फॉर 2024 हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल इंडिया रैंक 31, Shreya Tyagi, and we really congratulate her on this massive feat. In fact, if you look at Shreya's trajectory, it is very important to realize, and this really will help motivate students a lot, कि किस तरह से आपने persistently hard work करते रहना है. In fact, this isn't the first time that Shreya secured a rank also, right? इससे पहले उनका 2020 में रैंक 319 आया था, right? उसके बाद जो है उन्होंने दोबारा 2022 में पेपर दिया जब उनका रैंक 123 आया. But again, she always had her ambition, she had her goal in place that I want to join the Indian Foreign Services, and therefore it becomes very easy, है ना, जब especially आप एक पायदान पा लेते हैं, एक रैंक ले लेते हैं, राइट, स्पेशली तब बहुत ज़्यादा एक टेंडेंसी आ जाती है टू बी लेड बैक, राइट, कि हमने कर लिया है. बट श्रेया कॉन्कर्ड इट ऑल टू इंश्योर कि उनका एक जो फाइनल ड्रीम है उसे वो अचीव कर पाएँ, एंड दिस हैपेंड इन 2024 फाइनली विद हर गेटिंग रैंक 31. राइट, तो ये हमेशा याद रखना है आपने, ये हमेशा हम बोलते हैं दैट द एग्ज़ाम यूपीएससी इज़ अ लॉन्ग एंड आर्डर्स जर्नी. राइट, पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस इतना लंबा है, फिर जितने आप अटेम्प्ट्स देते हैं दैट again makes the journey even longer, but the idea is to never become laid back, to never give up on your ambitions, and very importantly सिर्फ सोचते नहीं रहना है, but you have to put your thoughts into action. right, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा. आपने फल की होप में नहीं करते रहना है ना, फल अपने आप आ जाएगा, but the idea is फल तभी आता है जब आप कर्म करोगे. राइट, सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली पुट इन एफर्ट्स, यू हैव टू कंसिस्टेंटली इम्प्रूव, एंड यू हैव टू कंसिस्टेंटली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. राइट, एक और चीज़ बहुत बार बच्चे ये इनके अंदर टेंडेंसी आ जाती है कि once you happen to say maybe clear something, right, if you happen to clear prelims you might take that for granted, if you happen to clear mains you might take that for granted, if you already have a rank you might take, or the level of preparation that you need to push for you might end up taking that for granted also. right, it is very important कि आप consistently अपने हर attempt में उसे as your first attempt दोबारा देखें और उससे भी ज़्यादा मेहनत डालें, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश नज़रिए से उसे अप्रोच करें, ताकि पास्ट के आपके जो मिस्टेक्स हैं आप उन्हें रिपीट ना करें. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट श्रेयाज स्टोरी टेल्स अस. राइट, सो जैसे कि हमने बताया था, इन ऑल ऑनेस्टी शी वॉज आर एनरोल्ड स्टूडेंट. इससे पहले भी जो हमारे फ्री PSIR के PYQs के क्रैश कोर्सेज हैं वो उनका भी हिस्सा थी. राइट, देन द PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन फॉर 2024 जो है उन्होंने वो भी ज्वाइन किया. एंड अगेन यहाँ पे ऑल्सो आई वॉन्ट टू bring one more important thing into purview, what a lot of students, what a lot of toppers also talk about, right, which is सबसे पहले UPSC से बड़ा आपका गाइड कोई नहीं है, and this particularly holds true
फॉर योर ऑप्शनल एज वेल, राइट। प्रीलिम्स के अंदर बच्चे फिर भी कई बार पुराने जो पेपर्स हैं, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें पढ़ते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट यूपीएससी, स्टेट के बहुत सारे जो प्रीलिम्स हैं, आपकी सीडीएस एक्सेट्रा के जो पेपर्स हैं, स्टूडेंट्स टेंड टू लुक एट देम ऑल्सो। तो फिर अब मेंस में पर्टिकुलरली ऑप्शनल में ये इंपॉर्टेंट गाइड कुंजी को क्यों भूल जाते हैं, राइट। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव कंसिस्टेंटली रिमार्क्ड अपॉन। एंड अगर आप भी एक पीएसआई के स्टूडेंट है, जो हमारी एटलीस्ट फ्री पीएसआई पीवाईक्यूज की सीरीज है, उनको आप जरूर देखिए, राइट। नाउ as Shreya's story will also tell us, optional can be a massive game changer in your mains, right। कुछ चीज़ें जो कि आपने हमेशा याद रखनी है, consistent revision, right। Just because you've read the optional once does not mean that you have covered everything in and एनीथिंग अंडर द सन, राइट। आपने कंसिस्टेंटली अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना है, राइट। यहाँ पे अगेन आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं स्ट्रेस कर रही हूँ रिविजन। एंड रिविजन का मतलब ये नहीं कि आप हर साल नए 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 रिसोर्सेज जोड़ते रहें, विच इज़ अगेन अ टेंडेंसी इन स्टूडेंट्स, राइट, कि ऑफन वो डर में और किताबें उठा लेते हैं, जिसके कारण ना उन्हें पिछला याद रहता है, ना ही जो नया किया है वो याद रहता है, राइट। सो कंसिस्टेंट रिविजन विथ फिक्स्ड रिसोर्सेज। देन वेरी इंपॉर्टेंटली राइटिंग क्यों इतनी ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको समझाती है कि क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसे ब्रेक डाउन कैसे करें और आंसर कैसे अप्रोच करें, राइट। सो दिस कैन ओनली कम via writing. So one is you have the base by covering the syllabus, but how do you translate what you studied into a good answer is only when you practice repeatedly. Then very importantly, apart from scholars, scholars के ऊपर बहुत हवा मचा रहता है, but उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कीवर्ड इंक्लूजन, राइट। जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं एसोसिएटेड विद द टॉपिक इन योर ऑप्शनल, आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं। देन चाहे क्वेश्चन डायरेक्टली किसी करंट इशू पे आए या ना आए, चाहे ये स्टैटिक क्वेश्चन हो, फिलॉसफी से जुड़ा क्वेश्चन हो, थ्योरी से जुड़ा क्वेश्चन हो, थिंकर से जुड़ा क्वेश्चन हो, जितने ज़्यादा आपके एग्जाम्पल्स रेलिवेंट, अपडेटेड, करंट के साथ इंटरलिंकेज आप कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा, इंश्योरिंग बेटर मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें बहुत घिसी पिटी चीज़ लगती है, बट बच्चे इसको भी बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर, जहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन ऑन पॉइंट है, राइट, डिस्कसिंग व्हाट द क्वेश्चन स्टार्टिंग ग्राउंड इज, आपकी बॉडी के अंदर आप एड्रेस कर रहे हैं जितने भी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है उसको सफिशेंटली, एंड आपकी एक वेल राउंडेड कंक्लूजन है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, जो कि इंटरलिंकेज बेस्ड है, जो कि रेलिवेंस आज भी इन दिस टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, थिंकर, थ्योरी बताती है। ऐसा आंसर एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा। अभी हम आगे वेरी क्विकली वी विल बी लुकिंग एट वन ऑफ द इवैल्यूएटेड फुल लेंथ टेस्ट्स ऑफ श्रेया, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन एन आंसर आपके सामने निकल के आएगा। सून ही वी आर होपिंग टू ब्रिंग ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन, ताकि आप और ज़्यादा इसके बारे में जान सके, स्ट्रैटेजी के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में जान सके। सो लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक एट द इवैल्यूएटेड copy to understand how toppers approach PSI option के questions and किस तरह से वो अपने answers लिखते हैं। Now in front of me is Shreya's answer copy, one of her full length tests, right? And again यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से constantly improvement की जाती है, and it is only by writing again and again. This is one of the first full length tests, right, जिसके through improvement आती है। Now very importantly, one of the things that I particularly noticed that उन्होंने हर टेस्ट लिखा, चाहे वो आपके सेक्शनल टेस्ट हो जो कि 10 क्वेश्चंस के थे, चाहे वो हाफ लेंथ हो, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो, सारे टेस्ट जो हैं उन्होंने लिखे ताकि कोई भी PYQ, कोई भी टेस्ट जो है मिस ना हो, सो एज टू इंश्योर कंप्लीट कवरेज एंड टू इंश्योर रेगुलर प्रैक्टिस एज वेल। एंड ये उनके आंसर्स में भी इन सब्सिक्वेंट जो हम देखते हैं टेस्ट्स, वो निकल के आता है कि किस तरह से हर आंसर्स वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग, राइट। तो शुरुआत में देखते हैं क्वेश्चन जो कि कल्चरल रिलेटिविज्म पे था, जहाँ पे उन्होंने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, राइट। एंड यू विल सी द काइंड ऑफ वर्ड्स, द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आप
रेगुलर पार्लांस में सुनते हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जा रहा था, राइट। तो इंट्रोडक्शन में वो लिखती हैं कि किस तरह से जो राइज ऑफ मॉडर्निटी है उसे रिगार्ड किया जा रहा है एज एन एज ऑफ मेटा नैरेटिव्स। ना ये जो टर्म है मेटा नैरेटिव्स का, ये बहुत बार आजकल जो है सुनने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली, राइट। मेटा नैरेटिव्स होते क्या, बेसिकली एक ओवर आर्चिंग आइडिया या स्कीम जिसके थ्रू जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है। अब मेटा नैरेटिव्स कहीं से भी आ सकते हैं, रिलीजन बेस्ड हो सकते हैं, राइट। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम कैन बी सीन एज मेटा नैरेटिव्स, या न्यू लिबरलिज्म आज का वो एक मेटा नैरेटिव की तरह देखा जा सकता है, राइट। तो ये मेटा नैरेटिव्स के कारण क्या होता है, ऑफन एक फ्रेमवर्क आपको दिया जाता है कि हाँ जी दुनिया इसी हिसाब से जो है काम कर रही है, जिसके कारण क्या होता है ऑफन सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर सेट। बट प्रॉब्लम क्या है, इसके कारण जो लिटिल स्टोरीज हैं उन्हें भी हम इसी एक मेजर स्कीम के अंदर फिट करने की कोशिश कर देते हैं, राइट। जिसके कारण जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज हैं, राइट, अक्रॉस स्पेक्ट्रम, अक्रॉस स्पेस, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कल्चर्स जो कि हमें देखने को मिलती है, ऑफन हम उसे मिस आउट कर सकते हैं। एंड इसी आइडिया को उन्होंने रिलेट किया कि किस तरह से ये अपोज है टू दिस आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। अब कल्चरल रिलेटिविज्म को यहाँ पे डिफाइन करने की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरत आ जाती है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म क्या कहते हैं कि देखिए हर कल्चर के अंदर सर्टेन यूनिक कंपोनेंट्स होते हैं और आप ये जो यूनिक डाइवर्सिटीज हैं उनको आप जज नहीं कर सकते बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ अनदर कल्चर, राइट। सो बेसिकली ऐसे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, बल्कि हर कल्चर की खुद की कुछ इंट्रिकेसीज होती है, डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट नोशंस ऑफ रियलिटी होते हैं जिन्हें रिस्पेक्ट करना जरूरी है, राइट। सो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही जो उसका ऑपोजिट था उससे शुरुआत करके एक नुआंस तरीके से कल्चरल रिलेटिविज्म होता क्या है उसे पेश करने की कोशिश की, राइट। तो इसी के अंदर फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी वेरियस थ्योरीज कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में बात करती हैं एंड देन इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, राइट। सो व्हेन वी लुक एट आइडियाज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म टुडे, राइट, मल्टीकल्चरलिज्म के आइडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल लाइक आइरिस मैरियन यंग ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, विल किमलिका का काम है, भिक्खू पारेख का काम है कि किस तरह से एक मिडिल ग्राउंड की तरह इमर्ज हो सकता है बिटवीन कल्चरल रिलेटिविज्म एज वेल एज मेटा नैरेटिव्स, राइट, टू हैव अ मोर बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर उनके एग्जाम्पल्स और ज़्यादा ऐड हो जाते तो इट वुड हैव मेड हर आंसर इवन बेटर, विच इज़ अगेन समथिंग विच यू वुड हैव पिक्ड अप फ्रॉम, राइट। तो अगेन कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम पे कई बार जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती है, जेनिटल म्यूटिलेशन जैसी चीज़ें जो हैं इन सर्टेन कल्चर्स जो है उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, राइट। सो हाउएवर मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, एक मिडिल ग्राउंड वाइल इंश्योरिंग प्रेजर्वेशन ऑफ डिफरेंशियल राइट्स, राइट, ऑफ सेल्फ एक सेल्फ एक्सप्रेशन के राइट्स, ऑफ कम्युनिटी राइट्स। देयर आर ऑल्सो सर्टेन यूनिवर्सल इंडिविजुअल राइट्स विच प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड द लाइफ ऑफ अ पर्सन, जो कि उन्हें भी सेफगार्ड करते हैं, उनके साथ उन्हें बैलेंस किया जाता है, राइट। तो इस तरह का पर्सपेक्टिव वो लेके भी आई अपनी आंसर में, राइट। थोड़े और एग्जाम्पल्स जो हैं उनकी जरूरत थी विच आई एम श्योर शी इनग्रेन्ड इन हर फाइनल एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से आपने हमेशा याद रखना है, आप दोनों जो चीजें वो इंक्लूड करते हैं एंड जो मिस्टेक्स पॉइंट आउट की जाती हैं, दोनों चीजों से स्टूडेंट्स ने सीखना होता है। यहीं पे मैं लेके आऊंगी एक और क्वेश्चन जो कि अगेन जहां पे उन्हें थोड़ा क्रिटिकल फीडबैक मिला था, बट क्रिटिकल फीडबैक से ही सीखने को मिलता है, राइट, विच वाज अबाउट इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर इंटाइटलमेंट थ्योरी की डेफिनेशन तो एकदम सही कर दी, राइट, कि ये किस तरह का आइडिया है जहां पे ये डेजर्ट बेस्ड आइडिया है, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलता है, ये जस्टिस होगी। बट इंटाइटलमेंट थ्योरी आई कहां से, कहां किसने इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है, राइट। एंड
क्वेश्चन किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, अगर वो भी इंट्रोडक्शन में आ जाता तो इट वुड हैव मेड हर इंट्रोडक्शन इवन बेटर, राइट, विच वाज नॉजिक्स, जो हमारे जो न्यू लिबरल्स हैं, राइट, जो लिबर्टेरियन थ्योरिस्ट है लाइक नॉजिक, राइट, लाइक हायक, इनकी थ्योरी जो है ये इंटाइटलमेंट थ्योरी है. एंड अगेन रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम डिस्कसिंग एवरीवन एल्स, पहले जो है ये बात कर सकते थे, शुरुआत कर सकते थे दिस लिबर्टेरियन आइडिया की. एंड इनफैक्ट वापस जाने के अंदर भी अगर एरिस्टोटल को कोट करना था, हम बात कर सकते थे कि किस तरह से इनकी रेक्टिफिकेटरी जस्टिस के अलावा एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है टेक्निकली वो प्रोपोर्शनेट थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बेस्ड है, राइट. और ये प्रोपोर्शनेट थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑल्सो कैन गिव राइज टू अ डेजर्ट बेस्ड आइडिया ऑफ जस्टिस, राइट, वेरिन इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली. तो अगर आप डिजर्विंग है ऑफ समथिंग, आपको वो चीज मिलेगी जो कि आगे चल के एक तरह से इवॉल्व कर सकती है इनटू द इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, राइट. तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, नुआंसेस होते हैं जो कि कंटिन्यूस राइटिंग के थ्रू, आंसर राइटिंग के थ्रू पॉइंट आउट किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स हैपन टू गेन अ लॉट, राइट. तो और ज्यादा ऐसा पर्सपेक्टिव पाने के लिए हम डाउनलोड सेक्शन में ये एक जो फुल लेंथ टेस्ट की कॉपी है उसे अटैच कर देंगे, राइट. एंड यू स्टूडेंट्स कैन गो अहेड, डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, गेट अ पर्सपेक्टिव कि किस तरह से क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, आंसर्स लिखते हैं, एंड किन किन मिस्टेक्स का भी जो है ध्यान रखना जरूरी है. With that in mind, right, we come back to these learnings, and ऐसी ही learnings हम continuously share करेंगे by sharing our various toppers experiences also. अभी तक 6 जो हैं बच्चे from our पेड कोर्सेज ऑफ PSIR, राइट, उनके जो है रैंक्स हमें पता है, और धीरे धीरे जो है ओवर टाइम स्टूडेंट्स कीप गेटिंग इन टच विद अस, राइट, कीप टेलिंग अस अबाउट देयर स्टोरीज, राइट. सो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट, सम जो कि रिपीटेडली अटेम्प्ट दे रहे थे, राइट, उनके जो हैं इस बार रैंक्स आए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज आई हैं. एंड विद फुल डिस्क्लोजर जो है हम बताते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैड IGP के हमारे बहुत ये बच्चे भी हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ मॉक इंटरव्यूज़ की तैयारी की थी. PSIR के करंट अफेयर्स जो है वो भी हम इनको प्रोवाइड कर रहे थे ताकि इंटरव्यू के अंदर ये पूरे प्रिपेयर्ड जाएं, राइट. सो इस तरह से सक्सेस स्टोरीज बनती जा रही है, हम इन्हें शेयर करते जाएंगे सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड गाइडेंस from their strategies, from their perspectives. इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं PSIR के लिए, इफ़ यूर अ स्टूडेंट जिनका फाउंडेशन हो चुका है बट करंट अफेयर्स के अंदर वो लैग कर रहे हैं, तो आप हमारा PSI का करंट अफेयर्स कोर्स जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं, जो कि कवर कराएगा आपके करंट अफेयर्स को टिल मेंस 2026. Currently it is priced at 5,999, right. डिस्काउंट के लिए आप PSIR 26 का कोड यूज कर सकते हैं. बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन गेट इन टच विद द टीम ऑन दिस नंबर और कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन ईमेल ID. देन वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा बैच 2 जो है, राइट, इसकी भी शुरुआत हो गई है. एंड 28 अप्रैल से, 21 अप्रैल से ओरिएंटेशन थी, 28 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, राइट. अगेन यू कैन यूज द सेम कोड टू अवेल डिस्काउंट. फुल शेड्यूल जो है आपको मिल जाएगा. अगेन स्टैटिक लेक्चर्स एंड करंट अफेयर्स लेक्चर्स दोनों ही प्रोवाइड होते हैं हमारे इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ताकि टाइमली कंप्लीशन हो, पूरी तरह से एंड टू एंड टॉपिक्स कवर कराए जा सके. मेंस 2026 तक आपको यहाँ पे भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट्स मिलेंगे, मिनी टेस्ट, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट्स, राइट. प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू गाइडेंस की जाएगी, रूटीन लाइव सेशंस होंगे, राइट. मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे. अगर आप इवैल्यूएशन या मेंटरशिप के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपके आंसर्स भी चेक होंगे, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं एनी ऑफ दीज कोर्सेज को, राइट. दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस और राइट इन टू अस. Thank you and see you again. Again, any of our toppers out there, right, who might be looking to get in touch with us, आप भी इन्हीं इस नंबर पे या फिर sleepy.classes@gmail.com या psir@sleepyclasses.com पे हमारे साथ जो है इंटरैक्ट कर सकते हैं.